Assalamualaikum, dear students. I start my lesson in the name of Allah Almighty, who is most merciful and beneficent. Dear students, this is an English lecture, class 8, chapter number 6. Topic is the twins. Today's lecture is about reading, translation, and summary. Let's start the lecture, chapter number 6, and the topic is the twins, page number 32. Here is a pre-reading box. In pre-reading box, there are two questions. Let's answer these questions. Question number 1. Have you ever seen the twins? Have you ever seen the twins? क्या तुमने कभी जुड़वां बच्चे देखे हैं? And dear student, you can answer according to your experience. Yes, I have seen the twins. You can answer that. No, I have never seen the twins. Question number 2. Were you able to recognize each one of them? क्या तुम इनमें हर एक को पहचानने के काबिल थे? Dear student, you can answer according to the first reply, that if you answer yes, then you move on to answer this question. Your answer can be yes, I have seen the twins and I was able to recognize each of them. And you may answer that no, I was not able to recognize each one of them or could not differentiate them. Dear student, the main idea or central idea of the poem is that there were two brothers. They were twins. The poet was one of them. There was no difference between the two in look. Due to this similarity in look, the poet faced many problems. His brother was unruly. He used to do useless things. The worst effect of his brother's deeds was that the poet was blamed for doing such things. Let's start the reading and translation. Dear student, focus on your page number 32. The first stanza of this poem. In form and features, face and limb. Form mean शक्ल सूरत, features खदोखाल, face चेहरा and limb mean हाथ पाँव. शक्ल सूरत, खदोखाल, चेहरा और limb हाथ पाँव में. I grew so like my brother. Grew बढ़ना, like मिलता जुलता या हम शक्ल. मैं अपने भाई का इतना हम शक्ल होता चला गया. मैं अपने भाई का इतना हम शक्ल होता चला गया that folks got taking me for him. Folks mean लोग, got take me समझने लगे, for him अपने भाई जैसा, कि लोग मुझे मेरा भाई समझ लेते. And each for one another
और हम में हर एक को दूसरा भाई समझ लेते। इट पजल्ड ऑल अवर किथ एंड किन। पजल्ड उलझन में डाल दिया या परेशान कर दिया, किथ एंड किन रिश्तेदारों को। इस चीज़ ने मतलब हमारी मुशाहबत ने हमारे तमाम रिश्तेदारों को उलझन में डाल दिया। इट रीच्ड आ फियरफुल पिच। ये मसला खौफनाक हद तक जा पहुंचा। फियरफुल खौफनाक, पिच हद, खौफनाक हद तक जा पहुंचा। फॉर वन ऑफ अस वॉज बोर्न आ ट्विन। क्योंकि हम में से हर एक दूसरे का हम शक्ल पैदा हुआ था। ट्विन मीन हम शक्ल, जुड़वा पैदा हुआ था। येट नॉट अ सोल न्यू विच। किसी भी शख्स को ये पता ना चलता कि सामने मौजूद मैं हूँ कि मेरा भाई है। नॉट अ सोल, किसी भी शख्स को नहीं पता चलता था। Here in first stanza a question is asked. What did puzzle the kith and kin? Kith and kin means रिश्तेदार। कौन सी चीज़ रिश्तेदारों को उलझन में डाल देती। The twins looked so alike. The twins looked so alike. The relatives mistook each for the other. This puzzled them very much. जुड़वा बच्चे एक जैसे नज़र आते थे। रिश्तेदार एक भाई को दूसरा समझ लेते। ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा उलझन में डाल देती थी। Dear student, let's start the reading of second stanza of this poem. One day, to make the matter worse. एक दिन मामला और भी पेचीदा हो गया। वर्स मीन पेचीदा हो गया। एक दिन मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया। पेचीदा मीन बहुत मुश्किल में पड़ गया। Before our names were fixed. नेम्स, नाम, फिक्स्ड रखे जाते। इससे पहले कि हमारे नाम रखे जाते। एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स। जब नर्स हमें नहला रही थी। बीइंग वॉश्ड, नहला रही थी, बाय नर्स, जब नर्स हमें नहला रही थी। वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स्ड। हम मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में गलत मलत हो गए, मिक्स हो गए। कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, मिक्स्ड, मिल गए या गलत मलत हो गए। यहाँ पे गलत मलत होना, मिलने से मुराद ये है कि दोनों भाई बचपन ही से क्या जुड़वा थे, हम शक्ल थे और इनमें बहुत ज़्यादा मुशाबत थी। और यहाँ पे वो कह रहा है कि इस तरह से कि जैसे नर्स ने हमें नहलाया और हम एक दूसरे में मिक्सअप हो गए और हमारे नाम भी मिक्सअप हो गए या मिल गए। एंड thus you see by fate's decree. Fate mean किस्मत, fates apostrophe s, किस्मत का, डिक्री फैसला। और देखिए किस्मत के खेल के सबब। और रादर नर्स विम, नर्स मीन नर्स, विम मीन तरंग, जोश, खुशी या फिर वहम। या यूं कहिए कि नर्स ने तरंग में आकर माय ब्रदर जॉन वॉज नेम्ड मी, मेरे भाई को मेरा नाम दे दिया। भाई का नाम क्या था? जॉन। मेरा भाई जॉन का नाम मुझे दे दिया। एंड आई वॉज नेम्ड हिम, और मुझे उसका नाम दे दिया। Here is
a question relating to this stanza. Who mixed the twins? जुड़वा बच्चों को गलत मलत किसने कर दिया था? And the answer is, while bathing the twins, the nurse mixed them up. जुड़वा बच्चों को नहलाते वक्त नर्स ने इन्हें गलत मलत कर दिया था. नेक्स्ट स्टेंजा. This fatal likeness ever dogged. Fatal मोहलक, likeness मुशाहबत, मुशाहबत मिलना जुलना, एवर डॉग्ड हमेशा पीछा करती रही. ये जानलेवा मुशाहबत हमेशा पीछा करती रही. माई फुट स्टेप्स व्हेन एट स्कूल. फुट स्टेप्स नक्शे पा या कदमों के निशान. मेरे कदमों के निशान जब मैं स्कूल में पहुंचा या स्कूल में पढ़ता था. एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड. गेटिंग समझा जाता, फ्लॉग्ड मार पड़ती थी. ऑलवेज हमेशा, गेटिंग फ्लॉग्ड मार पड़ती थी और मुझे हमेशा मार पड़ती थी. फॉर जॉन टर्न्ड आउट आ फूल. क्योंकि जॉन अहमक साबित हुआ था. टर्न्ड आउट साबित हुआ, आ फूल एक बेवकूफ़ या अहमक. आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली. आई पुट दिस क्वेश्चन आर आई आस्क दिस क्वेश्चन. मैं ये मसला बेसूद उठाता हूँ. फ्रूटलेसली बेफ़ायदा या बेसूद. मैं ये मसला बगैर किसी फ़ायदे के उठाता हूँ. टू एवरी वन आई न्यू. एवरी वन हर एक, आई न्यू जिसे मैं जानता हूँ. हर इस शख्स के सामने जिसे मैं जानता था. वट वुड यू डू इफ़ आई वर मी, इफ़ यू वर मी. आप क्या करते अगर आप मेरी जगह होते. टू प्रूव दैट योर नेम यू वर यू. ये साबित करने के लिए कि आप हैं. यहाँ पे शायर एक क्वेश्चन उठाता है कि आप क्या करते अगर आप मेरी जगह होते. ये साबित करने के लिए कि आप हैं. हियर इज अनदर क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैटल लाइकनेस. फैटल लाइकनेस मीन मोहलिक मुशाहबत या तबाकुन मुशाहबत से आप क्या समझते हैं. द फ्रेज फैटल लाइकनेस हैज़ बीन यूज्ड इन टू सेंसेस. मतलब तबाकुन मुशाहबत जो इस्तेमाल किया गया है लफ्ज़, इसे दो मानों में इस्तेमाल किया गया है. फर्स्ट, इट शोज़ द सिमिलैरिटी फिक्स्ड बाय फेट. पहले माने ये हैं, ये इस मुशाहबत को ज़ाहिर करता है जो तकदीर ने लिख दी, फेट. सेकंड, इट मीन्स अ लाइकनेस दैट इज़ डेडली. दूसरा ये कि इससे मुराद जानलेवा मुशाहबत है. जानलेवा मुशाहबत का मतलब कि इसका नुकसान होता है पोइट को, कि उसे मार पड़ती है, काम वो जो जॉन ने किए होते हैं. Dear student, our reading and translation is completed. Let's move on to learn the summary. Chapter number 6, The Twin. छठा चैप्टर है और टॉपिक का मतलब जुड़वा या हमशक्ल. समरी. The poem is about two brothers. ये नज़्म दो भाइयों के बारे में है. They were twins. दोनों भाई जुड़वा थे. The poet was one of them. शायर उनमें से एक था. There was no difference between the two in look. शक्लो शबाहत में
इन लुक, शक्ल शबाहत में ये दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं था। दे लुक्ड सो अलाइक दैट, वो इतने ज़्यादा हम शक्ल थे या फिर इतने ज़्यादा उनमें मुशाबत थी। द नर्स मिक्स देम अप वाइल बाथिंग देम, कि नर्स ने उन्हें गलत मलत कर दिया जब वो उसे नहलाने लगी। यानी कि नर्स ने नहलाते वक्त उन्हें गलत मलत कर दिया था। इवन दे वर नेम्ड इनकरेक्टली, यहाँ तक कि उनके नाम भी गलत रखे गए। ईच गोट द नेम ऑफ द अदर, हर भाई को दूसरे भाई का नाम दिया गया। यानी वो आपस में इतने मिक्सअप हो गए कि एक को दूसरे का नाम दिया गया, मतलब हर एक को दूसरा शख्स समझता था या उसका भाई समझता था। He says that even fate may have intrigued against him in this matter. वो कहता है, मतलब शायर कहता है कि इस मामले में तकदीर ने भी इसके खिलाफ साजिश की। इंट्रिग मीन साजिश करना, अगेंस्ट हिम इसके खिलाफ, इन दिस मैटर इस मामले में। ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन लुक, ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन लुक, शक्ल शबाहत में इस मुमासलत की वजह से या इस मिलने जुलने की वजह से द पोइट फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, फेस्ड सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम्स मसाइल का, शायर को बहुत से मसाइल का सामना हुआ। हिज ब्रदर वाज अनरूली एंड फुलिश, अनरूली अजट, बेवकूफ़, एंड फुलिश अहमक था। उसका भाई अजट और अहमक था। He used to do useless things, यूजलेस मीन बेफायदा, नुकसान वाली। उसका भाई फजूल काम किया करता था या फिर बुरे काम किया करता था, गलत हरकत करता। The worst effect of his brother's deeds was that the poet was blamed for doing these things. The worst effect, सबसे बुरा असर, of his brother's deed, उसके भाई के कारनामों का, उसके भाई के कारनामों का बुरा असर ये था कि the poet was blamed, blamed mean बदनामी इसके हिस्से में आना या उसे बदनामी दी जाती, for doing these things। उसके भाई के कारनामों का बुरा असर ये था कि ये काम करने के लिए बदनामी शायर के हिस्से में आती थी या फिर शायर को इसका इल्ज़ाम दिया जाता था। The effect of this likeness affected the poet even at school. Effect mean असर, of this likeness मुमासलत, मुमासलत के असर ने हत्ता के शायर को स्कूल में भी मुतासर किया। इफ़ेक्ट मीन्स असर, असर, here effect is a noun and affected it is a verb. This word is starting with letter A. The effect of this likeness, मुमासलत का असर, affected the poet even at school, मुमासलत के इस असर ने हत्ता के शायर को स्कूल में भी मुतासर किया। He was mistaken for his brother in every matter. In every matter, हर मामले में mistaken समझा जाता या गलती से समझ लिया जाता। हर मामले में इसे इसका भाई समझ लिया जाता। He was often punished for his brother's foolishness. Often अक्सर औकात punished सज़ा दी जाती, brothers foolishness उसके भाई की
फुलिशनेस अहमकाना हरकतों की या बेवकूफ़ियों की। इसे अक्सर अपने भाई की बेवकूफ़ी के सबब मार पड़ती थी। He ends the poem by asking the readers what they would do if they had to face a similar situation. He poet मतलब शायर अपनी नज़्म ख़त्म करता है अपने सामीन रीडर्स पढ़ने वालों से पूछते हुए कि वो क्या करते, व्हाट दे वुड डू वो क्या करते अगर उन्हें इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता। मतलब कि अगर आपको इस तरह की यानी पढ़ने वाले सुनने वालों को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता तो वो क्या करते। डियर स्टूडेंट, नोट डाउन द डायरी, डू द रीडिंग, लर्न द ट्रांसलेशन, लर्न एंड राइट द समरी ऑन योर नोटबुक। Dear student, see you later with another lesson. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.